हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन वाले टॉपिक पर, और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, जहाँ पे हमने मोलारिटी के बारे में बात कर लिया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हमने बात किया नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड, number of equivalent weight of solid present in 1 liter of solution, number of equivalent weight of solid present in 1 liter of solution is called normality of the solution। और normality को calculate करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है equivalent weight की। तो equivalent weight निकालने के लिए हमने उसके different formulae लिखे। that is molecular weight by valency for salts, molecular weight by basicity of acid, this is for acid, molecular weight by acidity of a base, molecular weight by number of electron exchange, molecular weight by number of oxygen, chlorine or hydrogen atom change during the redox reaction, and molecular weight by change in oxidation number into change in atomicity is the formula for calculation of इक्वलेंट वेट। तो इन सब फॉर्मूले से हम इक्वलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ इक्वलेंट वेट हम लोग नॉर्मेलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे थे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मेलिटी से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 25 मिलीलीटर N/20 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 25 मिलीलीटर N/25 मिलीलीटर N/20 solution, N/20 solution of oxalic acid, 25 milliliter N/20 solution of oxalic acid. Oxalic acid is neutralized by 20 ml of camenophore, 20 milliliter of camenophore solution neutralized by 20 milliliter of camenophore solution is neutralized by 20 milliliter of camenophore solution in acidic medium। the condition is here in acidic medium में एक प्रोसेस हो रहा है। in acidic medium calculate normality and strength of camenophore solution। calculate normality and strength of camenophore solution। calculate normality and strength of camenophore solution। तो camenophore solution की नॉर्मेलिटी और उसका स्ट्रेंथ हमको निकालना है। कंडीशन इज इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम का मतलब क्या ध्यान रखना है? द इक्वलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर, इफ इट इज रिक्वायर्ड देन इट इज M/5 मोलिकुलर वेट बाय 5, मतलब 158/5। तो 31.6 इज द इक्वलेंट वेट ऑफ कैमोनोफोर इन दिस मीडियम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, दो पार्ट पे है क्वेश्चन। 25 ml N/20 solution of oxalic acid neutralized by 20 ml solution of KOH in acidic medium। तो now the first formula is N1V1 equal to N2B2। what is to be calculated? N2 is to be calculated, normality 2 चाहिए मुझे, है ना। the formula is now N1V1 by V2। तो N1 is what? N1 is 1/20 into V1 is what? 25 by V2 is what? V2 is 20 milliliter। तो V2 is 20, तो 25/400 आ जाएगा, 25/400। ओके, तो दिस इज 25/400। तो 1/16 is the normality of the second solution। ये आ गया second solution का normality 1/16। and now what is the second thing is to be calculated? strength of camenophore। तो strength is calculated by, strength का formula होगा, strength is calculated by normality into equivalent weight। strength of the solution is calculated by normality
into equivalent weight. Strength of solution is calculated by normality into equivalent weight. So normality is 1/16, equivalent weight is 32.6, equivalent weight is 32.6, तो 16 दूनी 32, 2 point something is the answer. Okay, 31.6, sorry, the equivalent weight is in acidic medium is 31.6. So exactly it is not 2, it is less than 2, है ना, 1.9697 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा. 1.97 अप्रोक्सीमेट आंसर इज, the answer is 1.97, the answer is 1.97. So this is the calculation of the question. Comparison of normality, वॉल्यूम, और एक नया फॉर्मूला आ गया स्ट्रेंथ के लिए. तो स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट और मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, तो ये स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन है. अब स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड अगेन विथ नॉर्मेलिटी. 3 नॉर्मल 75 मिलीलीटर HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन, 3 नॉर्मल 75 मिलीलीटर HCl solution, 3 normal 75 milliliter HCl solution is added to how much quantity of water is added to how much quantity of water, how much quantity of water, quantity of water added to how much quantity of water to form one normal solution of HCl. मतलब अगर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो क्या हो जाएगा? 73 नॉर्मल 75 मिलीलीटर वाला HCl सॉल्यूशन है मेरे पास. देयर इज अ सॉल्यूशन, एक HCl का विलयन है जो कि 75 मिलीलीटर है, इसकी नॉर्मेलिटी 3 है. इसमें कितना और पानी मिलाऊं? हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, हाउ इज एडेड टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसमें कितना पानी मिलाएं कि सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी 1 हो जाए. ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला इज N1V1 इक्वल टू N2V2. पहला फॉर्मूला क्या है? N1V1 इक्वल टू N2V2. और फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पहले V2 फाइंड आउट करना है कि V2 कहां पे पहुंचेगा उस समय. तो N1V1 3 इंटू 75/1. ओके, तो दिस इज 225. ओके, तो 225 ml पर मुझे V2 को पहुंचाना है. V2 कहां चाहिए? 225 पर. और पहले से मेरे पास कितना वॉल्यूम है? पहले से मेरे पास वॉल्यूम है 75 मिलीलीटर. पहले से वॉल्यूम है मेरे पास 75 मिलीलीटर. तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेल V इज द V2 माइनस V1. इट मींस इट इज 225 minus 75. How much more water is required? The more water is required 150 milliliter. कितना पानी और डालना पड़ेगा? 150 milliliter पानी और डालना पड़ेगा. Okay, so 150 milliliter more water is required to form the solution. To complete the normality of the solution is 1 नॉर्मल. इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को 1 करने के लिए हमको कितना और वाटर चाहिए? तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड 150 मिलीलीटर. एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं. वन मोर सिमिलर क्वेश्चन. तो दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड विद द कंपैरिजन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ये वो फॉर्मूला है जिससे हम सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं. अब बात करते हैं हम अगले फॉर्मेट पर, अगले क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लाइक सेम. 25 मिलीलीटर 4 नॉर्मल HCl solution is required. How much water
water to form n by 8 HCl solution, n by 8 HCl solution. ओके, मतलब क्वेश्चन क्या है, 225 मिलीलीटर 4 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन में कितना और पानी मिला दिया जाए, कितना और पानी मिला दिया जाए कि सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n बाय 8 हो जाए, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n बाय 8 हो जाए. हाउ मच वाटर इज मोर एडेड टू form n by 8 HCl solution. It means the normality of the new solution is n by 8. तो first of all बिल्कुल the formula is the same, N1V1 equal to N2V2. तो first of all क्या create करना है, मुझे क्या calculate करना है, V2 निकालना है. तो V2 is what, N1V1, तो 25 4 into 25 by 1 by 8, it means it is 8 upper side, तो कितना हो गया 100, तो 100 800 milliliters the final volume, change in volume V2 minus V1, this is 800 minus 25, so now 775 ml water is more required to form n by 8 HCl solution. अगर इस सॉल्यूशन में 775 मिलीलीटर पानी और मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी n by 8 हो जाएगा. द सॉल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टर्म्स n by 8. ओके, अगला क्वेश्चन. अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी वाले, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस दो टाइप के होंगे. एक जिसमें सभी सॉल्यूशन सेम हैं, तो व्हेन ऑल द सॉल्यूशंस आर सेम देन फॉर्मूला इज N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाय V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, व्हेन द सॉल्यूशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, इट मींस इट इज एसिडिक और बेसिक. ओके, देन N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2. तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2. तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सॉल्यूशंस अलग अलग टाइप के हैं और वहां पे भी n इंटू वी, मतलब N1V1 पर आप किसको पुट करोगे, तो वो भी आपको सर्च करना होगा बाय मल्टीप्लाइंग n इंटू वी. तो दोनों गिवन सॉल्यूशन के n इंटू वी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिसका n इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा इट इज एट N1V1 and the resultant solution is also similar with N1V1. और रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, N1V1 के ऊपर डिपेंड करेगा. कभी ऐसा भी पूछते हैं क्वेश्चन फिनिश होने के बाद कि द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वो एसिड होगा या बेस होगा. तो इट मींस इट इज डिपेंड्स ऑन n इंटू वी, जो जिसका n इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज में एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं. 20 मिलीलीटर n by 5 HCl, 20 मिलीलीटर n by 5 HCl, 20 मिलीलीटर n by 5 HCl, 40 मिलीलीटर n by 5 सल्फ्यूरिक एसिड, n by 5 H2SO4, and the next is 80 milliliter n by 10 HNO3, 80 milliliter n by 10 HNO3 solution is there, HNO3 this solution is there. It means all the solutions are acid. Okay, सभी acidic nature के solution है. calculate resultant normality, calculate resultant normality of the solution, calculate resultant नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन की रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है हमको. तो हाउ टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, n इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाय V1 प्लस V2 प्लस V3. दिस इज द फॉर्मूला. सो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी N1V1, तो N1 इज 1/5, तो 1/5 इंटू 20 सीधे कट करके कर दूं तो 1/5 इंटू 20 तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 प्लस 8
5 8 जा 40, तो 8 प्लस 10 बाय हाउ मच, नहीं 8 आएगा ना, और 10 8 जा 80, तो 8, ओके 8 बाय द V1 V2 प्लस V3, तो 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 इज द 60, 60 और 80, 60 और 80, 8 6 14 140, 140, 140, ओके। तो कितना आ गया, दिस इज, फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा क्या, ये आ गया आपका 5 4 जा 24, 4 प्लस 8 प्लस 8, तो 16 और 4 20, 20 अपॉन 140, 20 अपॉन 140, दिस इज कैंसिल, 0 to 0, 1 by 7, 1 by 7 मीन्स व्हाट, तो 7 आ रहा है, 1 तो 10 जाने के लिए 1 से ज़्यादा जाएगा नहीं, 0.142, 0.142 is the answer. The resultant normality of the solution is 0.142. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the resultant normality for the solutions where all the solutions are of same type, जबकि सभी सॉल्यूशन हमारे पास कैसे हैं, सेम टाइप वाले थे, तब हमने इसके फॉर्मेट की बात किया। ठीक है, अब अगले फॉर्मूले पर आते हैं, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 40 ml n/10 HCl, 40 मिलीलीटर n/10 HCl, 40 मिलीलीटर n/10 HCl solution is mixed with 60 milliliter n/20 KOH solution, mixed with 60 milliliter n/20 KOH solution, 60 milliliter n/20 KOH solution. Calculate the normality of the resultant solution. Calculate the normality of resultant solution. तो resultant solution का नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। अब दो अलग अलग सॉल्यूशन, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई n इंटू वी ऑफ द सॉल्यूशन, n इंटू वी को मल्टीप्लाई करो, दिस इज कॉल्ड मिली इक्वलेंट, n इंटू वी। तो पहले वाले में कितना, n इंटू वी 1/10 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा 4। सेकेंड वाले में मिली इक्वलेंट कितना आएगा, 1/20 इंटू 60, नाउ इट्स मिली इक्वलेंट इज 3, ओके, 23 is 60. Now it is finally decided. N into V for acid is greater. N into V किसके लिए ज्यादा है, acid के लिए ज्यादा है। N into V is greater for acid. N into V is greater for acid. N into V की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, acid के लिए ज्यादा है। तो ये वैल्यू कहां पर जाएगी, it means it is at N1V1. तो what ये आ गया आपका N1V1, तो N1V1 किसके लिए, acid के लिए, तो 1/10 इंटू 40 माइनस 1/20 इंटू 60 बाय 40 प्लस 60 इज द टोटल सॉल्यूशन। ओके, नाउ 4 माइनस 3 बाय 100, तो 1/100, इट मीन्स 0.01 नॉर्मल। एंड इफ इट इज द क्वेश्चन what is the resultant solution, nature of the resultant solution, then answer is acidic. The resultant solution is acidic in nature. Resultant solution मतलब परिणामी विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। The resultant solution is acidic in nature. ठीक है, तो परिणामी विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, और इसके बाद अब हम बात करेंगे एक दो और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। दैट मोलारिटी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू नॉर्मेलिटी, वो फॉर्मूला अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए हैं ना, n इंटू वी।
हाँ एन स्मॉल एन इंटू नॉर्मेलिटी वाला, स्मॉल एन इंटू मोलारिटी। तो इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करना देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, सो मोलार टू नॉर्मल, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू मोलारिटी, स्मॉल एन इंटू मोलारिटी। अभी एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ, calculate the normality of, calculate the normality of 2 molar solution of H2SO4, 2 molar solution of H2SO4, H2SO4 के 2 मोलार विलयन का नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, H2SO4 is a dibasic compound. This is the structure of H2SO4. 2OH group is in the structure of sulfuric acid. So its basicity is 2. Number of OH group present in a mineral acid is called basicity. And number of OH group, number of replaceable OH group present in a base is called its acicity. Okay. तो यहाँ पे ये इसका basicity है। तो कितना normality equal to what, small n, तो n factor is 2 for sulfuric acid, molarity is given 2, तो now normality is 4। कितना हो जाएगा normality, it is 4 normal solution, it is 4 normal solution, कितना हो जाएगा 4 normal solution। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर, ओनली द यूज ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ m/30 H3PO4 solution, m/30 H3PO4 solution, m/30 H3PO4 solution का नॉर्मेलिटी निकालना है। फॉस्फोरिक एसिड इज अ ट्राइबेसिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड कैसा है, ट्राइबेसिक एसिड है। ओके, दिस इज अ ट्राइबेसिक एसिड, phosphoric acid is a tribasic acid, H3PO4, 3 OH group is there in the phosphoric acid. So normality equal to small n factor is 3, molarity is 1/30, so normality is here 1/10, okay, 1/10 normal is the solution, 1/10 normal is the solution, normality कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, 1/10 normal is the solution. So this is the calculations related with the normality. So many questions are there, है ना, थाउजेंड क्वेश्चंस बुक्स में दिए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन पे फॉर्मूले ध्यान रखना है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली ध्यान रहेंगे, है ना। अब बात करेंगे हम लोग अगले एक्सप्रेशन के बारे में। तो हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया मोलारिटी, मोलारिटी के बाद हमने बात कर लिया नॉर्मेलिटी के बारे में। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मेट इज मोलालिटी, अगला फॉर्मेट जिस पे हम बात करेंगे वो है मोलालिटी, एंड दिस इज द डेफिनेशन। एक बार फिर से, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ सेकंड वन, नॉर्मेलिटी number of equivalent weight of solute present in 1 liter of solution, and the definition of molality, it is defined as it is defined as number of moles of solute, number of moles of solute present, number of moles of solute present in 1 kilogram or 1000 gram of solvent। 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या
number of moles of solid present in 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पहले 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर सॉल्यूट डाला है. इट इज नॉट आफ्टर मेकिंग 1 लीटर, है ना. जैसे मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर का है. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है. ओके, तो दिस इज द हिंदी वर्जन ऑफ मोलालिटी. अब बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में. तो फॉर्मूले में तो कोई हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम ही नहीं है, कैलकुलेशंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मोलालिटी इज द ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अगर सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में दिया है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. सेकेंड फॉर्मूला, ग्राम वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया है तो जाएगा 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. ठीक है. तीसरा फॉर्मूला, थर्ड वन, मोलालिटी इक्वल टू, मोलारिटी से चेंज का फॉर्मूला है ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. मोलारिटी 1000 इंटू मोलारिटी, द फॉर्मेट इज 1000 इंटू मोलारिटी. हालांकि मोलारिटी निकाल करके भी हम इस फॉर्मूले पे जा सकते हैं चेंज करके, है ना, लेकिन अगर याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है ये फॉर्मूला. मोलार सॉल्यूशन दिया है और मोलल में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 इंटू मोलारिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोलारिटी, ग्राम molecular weight into molarity again. Okay, so this is the one of the very good formula for calculation of molar solution into molal solution. Okay, तो 3 applicable formulas are there. और मोलालिटी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी. हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे उसके बारे में. तो अभी पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, gram weight by gram molecular weight into 1000 by weight of solvent in grams, and here 1000 into molarity by 1000 into density minus gram molecular weight into molarity, gram molecular weight into molarity. Okay, अब इसकी यूनिट्स, तो यूनिट्स आर मोल्स पर किलोग्राम. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर किलोग्राम. इट्स यूनिट्स आर मोल्स पर किलोग्राम. इसकी यूनिट होगी मोल्स पर केजी, और मोल्स पर 1000 ग्राम भी हम इसको कह सकते हैं. मोल्स, तो यूनिट्स आर व्हाट? यूनिट्स आर मोल्स पर किलोग्राम. और एक बात और ध्यान रखेंगे, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द solution, molality of the solution is not affected by temperature, is not affected by temperature, not affected by temperature. विलयन की मोलरता पर तापक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेट, क्योंकि टेम्परेचर और वेट का कोई रिलेशन नहीं है. जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए जो क्वांटिटीज वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, लाइक मोलार, नॉर्मल, तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशंस टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाते हैं. तो मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. percentage by volume is also decreases with increase in temperature, but the quantities which depends on
masses. It is independent of temperature. Okay, तो molality of the solution is independent of temperature. ये temperature पर depend नहीं करती है. This is one of the important point. Okay, तो ये हो गया molality का formula और molality से related problems पर अब बात करेंगे. The questions related with molality. तो very simple question से start करते हैं. Calculate molality of 18 gram of solution of glucose. 18 gram of solution of glucose in 18 gram of solution of glucose in 500 gram of water. ओके तो 18 ग्राम ग्लूकोज को क्या किया है, 500 ग्राम वाटर के अंदर डाला है. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कहना चाहिए मुझे. तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर. तो 18 ग्राम ग्लूकोज को कहां पर रखा है, 500 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया. तो सॉल्यूशन का मोलालिटी चाहिए. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. अगर किलोग्राम में होता तो 1 बाय वेट ऑफ 1000, 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो ग्राम वेट कितना है, 18. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 इन 2000 बाय 500 इज द सॉल्वेंट. ओके, दिस इज 10 टाइम्स 118 10 ऑफ 180 और ये आ गया आपका 2 टाइम्स. तो नाउ द 2 बाय 10 इट मीन्स 0.2. 2 by 10 it is 0.2 molal. तो 0.2 molal is the solution. तो solution का molality कितना हो जाएगा, this time the molality of the solution is 0.2 molal. okay, तो solution का molality कितना हो गया, 0.2. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. A solution of H2SO4, a solution of H2SO4, sulfuric acid, solution of H2SO4 is 49% by weight. by weight लैंग्वेज के हिसाब से ध्यान रखना है. 49% by weight, 49% by weight. H2SO4 का 1 बिलियन भार के अनुसार 49% है. Solution of H2SO4 is 49% by weight. Its density is 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर. इसका हमने मोलालिटी भी निकाला था, है ना. तो डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर. इसका मोलारिटी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट किया था. The solution of H2SO4 is 49% by weight. Its density is 1.5 gram per milliliter. Calculate molality of the solution. तो ऐसे solution का आपको molality निकालना है. तो देखो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको. 49% by weight. It means 49% by weight. अगर solution 100 ग्राम है तो कंसीड कर लेते हैं. परसेंटेज का मतलब होता है इन 100. तो टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. इट्स मीनिंग इज टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. तो व्हाट इज द सॉल्यूट इज 49 ग्राम. टोटल सॉल्यूट कितना है, 49 ग्राम, बिकॉज H2SO4 इज 49% बाय वेट. तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा इसमें,
100 minus 49. So this is 51 gram of the solvent is here. 50 gram of weight of solvent is here. Now the formula for the molality is gram weight by molecular weight in 2000 by 51 is the weight of solvent. Now it is clear. The total solution is considered to be 100 because 49% by weight is the question. Okay, so total solution is 100. Solute is defined 49 gram. Then weight of solvent is 51. 100 minus 49 is 51. Then formula gram weight by molecular weight into 1000 by weight of solvent. So this is 2 times और 2 times हो गया तो this is 500. तो now 500 by 51. तो 500 by 51 अगर 50 होता तो आंसर आ जाता 10 और 51 है तो इसका मतलब आंसर 10 से थोड़ा कम आएगा. आंसर इज लेस देन 10. आंसर कहां जाएगा? 10 से थोड़ा कम होगा आंसर इसका. तो 500 डिवाइडेड बाय 51. 500 divided by 51. 9.8 is the answer. 9.8 molal. So 9.8 molal is the answer, also called 9.8 moles per kilogram. 9.8 moles per kilogram is the answer of this solution. Okay, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. इसको ध्यान रखना है कि जब बाय वेट दिया होगा तो वहां पर डेंसिटी अप्लाई नहीं हो रही थी. डेंसिटी को हमने अप्लाई नहीं किया फॉर्मूले में, है ना. तो ये ध्यान रखना है कि व्हेन क्वेश्चन इज गिवन बाय वेट देन देयर इज नो यूज ऑफ डेंसिटी. क्वेश्चन डेंसिटी अगर क्वेश्चन के अंदर दी भी है तो उसका कोई यूज फिलहाल नहीं है. एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, solution of hydrochloric acid is 38% by weight. और solution of HCl is 38% by weight. HCl का एक विलयन भार के अनुसार 38% है. Solution of HCl is 38% by weight. Its density is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. उसका डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. इट्स डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. कैलकुलेट मोलालिटी. ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस? 38% बाय वेट. इट मींस total solution is 100 gram. HCl is 38 gram. So water, the solvent remaining is the water, that is solvent. 100 minus 38, this is 62 gram. Now the formula molality equal to gram weight 38 by weight of HCl is 36.5 in 2000 by 62. तो देखो 38 बाय 36.5 तो रफली 1 से थोड़ा आसपास, 1 के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा, है ना, स्लाइटली ग्रेटर देन 1. और अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर लगा दूं, ये स्लाइटली 1 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, लगभग 1 के आसपास ही कह सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 100 बाय 6.2. 100 बाय 6.2. 6 कंसीड करता हूं मैं अगर इसको, तो 16 जा 96, है ना. 16 छक्का 96. 16 into 6 is the 96. 16 6 96. तो आंसर 16 के ऑर्डर में कुछ आएगा. तो अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले एग्जाम में लिखना है तो मैं अप्रोक्सीमेट करना भी धीरे धीरे सीख जाऊंगा कि आंसर किस ऑर्डर में आ रहा है. तो 16 point something is the answer, and the answer is exactly, the answer is 16.78. 16.77 or 16.78. 16.78 is the answer. Okay, एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे, है ना. सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर कैलकुलेट करके उसका आंसर्स को चेक करना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं कह सकते कि मुझसे 100% मिस्टेक नहीं हो सकता. कभी कभी मिस्टेक हो भी जाता है ना.
तो इसलिए सभी आंसर्स को चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज related with molality. 2.5 gram of ethanoic acid, 2.5 gram of ethanoic acid, formula is CH3COH, acetic acid, it is also called acetic acid. 2.5 gram of acetic acid, 2.5 gram of acetic acid dissolve in 75 gram of benzene, dissolve in 75 gram of benzene, C6H6, dissolve in 75 gram of benzene. Find the molality. Find the molality of the solution. Find the molality of the solution. Okay. तो कितना? 2.5 gram of acetic acid. 2.5 acetic acid is weighted 60. 2.5 gram of acetic acid dissolve in 75 gram of benzene. तो 1000 by weight of solvent 75. तो कितना आ गया ये? 2500. 2.5 by 1000. ठीक है, तो 25,000 आ जाएगा बाय 60. तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 5 30 और 3 कैरी, 6 7 42, 45, एक 0 आ गया. ठीक है, तो अगर 5000 होता तो आंसर आ जाता 0.5 के आसपास, और छोटा है डाटा तो पॉइंट, यहां का नीचे का डाटा, लोअर साइड का डाटा छोटा. देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ. 25 by 45, मैंने ऐसा कहा कि अगर यहाँ पे 50 होता तो एग्जैक्टली 0.5 इज द आंसर. अब 45 है तो 0.5 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, जस्ट स्लाइटली बिगर देन 0.5. दिस इज 0.556, 0.556, 0.556 इज द आंसर. तो 0.556 मोलाल इज द सॉल्यूशन. तो the molality of this solution is 0.2556. Now the next question. अब एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में किसी एग्जाम में आया हुआ है और वो बाय वॉल्यूम सेटेड है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसका, है ना, उस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से भी क्वेश्चन को ध्यान रखना पड़ता है. और सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन अ सॉल्यूशन of sulfuric acid is 93% weight by volume, weight by volume. तो प्रॉपरली लैंग्वेज के हिसाब से ध्यान रखना है. सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 93% weight by volume. कैसा है? 93% वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब जितना वेट आप बनाओगे उसमें से 93% कैंसिल होके आ जाएगा. वेट बाय वॉल्यूम. इट्स डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, और इसका घनत्व कितना है? 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है. डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर. Calculate molality of the solution. Calculate molality of the solution. तो ऐसे solution का हमको molality find out करना है. तो now weight by volume, मतलब पहले आपको weight बनाना पड़ेगा. How much is the weight of the total solution? तो calculation of weight of the solution, तो weight निकालने का फॉर्मूला होता है mass equal to volume into density. Volume into density. तो 93% परसेंटेज में है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100. डेंसिटी इज गिवन 1.84. सो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है? 184. मास ऑफ सॉल्यूशन इज 184. अब उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड कितना, सॉल्यूट कितना? 93. तो 93 इज द सॉलिड. ओके, और रिमेनिंग इज द सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट कितना बचेगा? 91 बचेगा, है ना. यहाँ पे भी ये सेटिंग ठीक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है तो ठीक है, कर लेते हैं. 91 इज द सॉल्वेंट. ओके, एंड नाउ द फॉर्मूला. 93 ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर 98 into 1000 by
91. Okay, the 93 by 98 in 2000 by 91. So this is 0.9 times and this is more than 10 times. So approximate the answer is 10. Approximate the answer is 10 and the answer is exactly 10.42. 10.42 molal solution is there, moles per kg. Okay, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सम more question about molality and then the remaining other concentrations, other method used to calculate the concentration of the solution. Okay, commandos, thank you.